नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हैदराबाद। ICRI-SAT की 50वीं सालगिरह है, उसका ये उत्सव है। Extend a warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It's an honor to have you with us, sir. Thank you. I request Dr. Jacqueline Hughes, Director General ICRISAT, to felicitate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi by presenting a memento. निकलने का है वो सेवा प्लान खड़ा होगा। Thank you, Dr. Hughes. We are honored to have the Honorable Prime Minister and other distinguished guests with us this afternoon as we launch ICRISAT's 50th anniversary celebrations. May I now invite Dr. Jacqueline Hughes to welcome the dignitaries and the gathering. All guests using translator services, kindly note that translation in English is available in Channel 1 and translation in Hindi is available in Channel 2. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeast Shri Kishan Reddy, members of the Diplomatic Corps and distinguished guests in the audience, ladies and gentlemen. It is a great privilege for our Institute to be graced by the Honourable Prime Minister of India to launch ICRISAT's 50th anniversary celebration that will continue through the year, leading into the United Nations International Year of Millets 2023. Great visionaries such as Dr. M.S. Swaminathan understood the need for an advanced agriculture research institute to serve the needs of the smallholder farmers, specifically in the drylands. Thus, the constitution of ICRISAT, the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, was signed on the 28th of March 1972. ICRISAT is the only international agricultural research institute headquartered in India. From humble beginnings, ICRISAT has made great strides in its journey of 5 decades. Through this journey, ICRISAT has aligned its work with the goals of our host country, such as doubling farmers' incomes. और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी मिशन उत्तराखंड पर जुटे हैं। राहुल गांधी ने किच्छा में मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं। किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो राहुल गांधी जो कि उत्तराखंड में किच्छा के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, किसान और मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड के दौरे पर हैं राहुल गांधी। किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, सरकार केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ओवैसी पर हमले को लेकर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ओवैसी को मारने के लिए चलाई गई थी गोलियां। पिस्टल की मैगजीन में 5 गोलियां भरी थी। लंबे समय से साजिश कर रहे थे आरोपी। सितंबर में ही हमले की योजना बनाई थी। पिछले साल संभल रैली में हमले की फिराक में थे आरोपी। संभल में भी हमले के लिए निकाल ली थी पिस्टल।
भीड़ की वजह से संभल में नहीं कर पाया हमला। आरोपी शुभम और सचिन से पूछताछ में हुआ खुलासा। मेरठ के किठौर से खरीदा गया था हथियार। आरोपी सचिन शर्मा के पास 9mm की पिस्टल थी। शुभम के पास भी रिवॉल्वर बरामद हुई है। ओवैसी की हर रैली पर नजर रखे हुए थे आरोपी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी पर गोली चलाई गई थी जिसमें 2 लोगों को पकड़ा भी गया था। तो ये पता चला कि बहुत दिनों से ये लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। पिछले साल संभल में जो रैली हुई थी उसमें भी हमले की फिराक में थे। उस वक्त भी इनके पास पिस्टल थी, 9mm की पिस्टल मिली है इनके पास से और एक रिवॉल्वर भी मिली है। भीड़ की वजह से संभल में हमला नहीं कर पाए। ओवैसी की तमाम रैलियों पर इनकी लगातार नजर बनी हुई थी। मेरठ के किठौर से खरीदा गया था हथियार। स्पीकर साहब ने खुद हमको फोन किया, हमारी तबीयत के ताल्लुक से पूछा और कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से। तो मैंने कहा सर कल सुबह आपसे आके मिलते हैं, बात करने। बोले आइए बात करेंगे। और फायरिंग पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, फायरिंग मामले की ठीक से जांच हो, कानून व्यवस्था ठीक है तो फायरिंग कैसे हुई। तो असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा सरकार पर। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था सही है तो फिर फायरिंग कैसे हुई और इस फायरिंग की सही से जांच होनी चाहिए। फायरिंग मामले की ठीक से जांच हो, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो फायरिंग मामले की जांच हो, कानून व्यवस्था ठीक है तो फायरिंग कैसे हुई, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो फायरिंग पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पास से हथियार भी बरामद हुए और इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है कि अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो फिर फायरिंग कैसे हुई, इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। अब वो एक मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को, अगर हमने कुछ बात कही है तो आप बताइए क्या कहा है, मीडिया को बताइए। ये आप नहीं तय कर सकते ना, ये तो संविधान और कानून तय करेगा कि हमने, कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है, आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है। चौथी बात, हम बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो हमने कल पार्लियामेंट में कहा, कि आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है, इस पर गौर कर लें। और ओवैसी पर हमले को लेकर अखिलेश का योगी पर हमला। ओवैसी पर हमला खराब कानून व्यवस्था को दिखाता है। अखिलेश यादव का कहना है कानून व्यवस्था अच्छी थी तो हमला कैसे हुआ। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम पर कई केस, ये अखिलेश यादव का कहना है। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम पर कई केस। यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। यूपी में कहां है डिफेंस कॉरिडोर। तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा, कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम पर कई केस। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग, जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। मैं ये कहता हूं उन्हें कुछ न पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है,
मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। और सीएम योगी ने गोरखपुर में कल नामांकन के बाद आज घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। रास्ते में लोगों का भारी हुजूम भी देखने को मिला। यही नहीं, योगी पर आसपास के घर से लोगों ने फूल बरसाए, तो वहीं सीएम योगी ने रास्ते में एक गुरुद्वारे भी गए और मत्था टेका। सीएम योगी ने सिख समुदाय से संवाद भी किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, ये तस्वीरें हैं नामांकन के बाद की। डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया, गोपाल मंदिर में पूजा की, तो गुरुद्वारे में माथा टेका और सिख समुदाय के लोगों से संवाद किया। रवि किशन जो कि सांसद हैं वो भी मौजूद रहे योगी आदित्यनाथ के साथ। लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर फूल बरसाए। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने आज बसंत पंचमी के अवसर पर लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में पतंग उड़ाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने खास बातचीत की। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी ने पतंग उड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। सर, ये पतंग आपने आज उड़ाई, इसके पहले भी आपने पतंग उड़ाई है, आज क्या अंतर दिख रहा है आपको? ये पतंग उड़ा रहे हैं विकास की उड़ान, विकास की उड़ान उत्तर प्रदेश की, जो ऐसी उड़ान भरी पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से कि गरीबों को 43 लाख पक्के मकान बना कर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, हर परिवार को 4-4 LED के बल्ब दिए, 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम किया। और यही नहीं, आगे भी इसको जारी रखेंगे, क्योंकि 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन भी दिया है। ये विकास की उड़ान को और ऊंचा लेकर जाएंगे। डबल इंजन की सरकार मोदी योगी सरकार में गरीबों को ये राहत आगे मिलती रहेगी। पिछड़े वंचित शोषित गरीब को ऐसे अधिकार मिलते रहेंगे। भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर कर दिखाएगी। सर, हवा का रुख पतंग पर निर्भर कर रहा है कि किधर जा रही है, लेकिन इस चुनाव का रुख क्या कह रहा है? चुनाव का रुख भी यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया है, भारतीय जनता पार्टी आगे भी करेगी। और जनता ने मन बनाया है कि 300 पार। मोदी जी को पहले भी जिताया था, योगी जी को भी जिताया था, अब की बार फिर जिताएंगे। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पहले फेज में चुनाव भी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की भाषा उपयोग की जा रही है, अभी जयंत चौधरी की एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि चमड़ी उतार दो, चर्बी निकाल देंगे, इस तरह के बयान, और गर्म है खून हमारा। तो इस तरह के बयानों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये घबराहट है, बौखलाहट है, और ये बयान तभी आते जब किसी को अपने डर हार सामने नजर आती हो। कोई कहता है घाट पे पहुंचा दो, कोई कहता है जमीन में गाड़ दो, कोई कहता है चर्बी हटा दो। जनता जानती है कि अपराधियों को, माफियों को, गुंडा राज करने वालों को संरक्षण देते थे। ये ऐसी भाषा का उपयोग ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी लोगों का खून बहाया, कभी चमड़ी बहाई है, कभी चमड़ी उतारी, तो कभी कुछ किया है। लेकिन जनता जान गई कि पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा क्या होती है। बहनों की, बेटियों की, बहुओं की, व्यापारियों को ये सुरक्षा का अधिकार किसी ने दिया है, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। सर, 2022 में क्या लग रहा है, 2017 को रिपीट करेंगे? जनता ने मन बनाया है कि ट्रिपल सेंचुरी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, और जनता का उसके लिए आभार करते हैं। जाइए, भारी मतदान कीजिए, विकास की इस उड़ान को और ऊंचाई दीजिए। उत्तर प्रदेश को आपने देश का दूसरे नंबर का राज्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बनाया, अब पहले नंबर का बनाने के लिए एक बार फिर अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि इस बार भी वो ट्रिपल सेंचुरी 2017 की तरह जरूर लगाएंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लता मंगेशकर की फिर तबीयत बिगड़ी है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर है लता मंगेशकर। 27 दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में है भर्ती, और एक बार फिर तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं
लता मंगेशकर। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। 27 दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत खराब हुई थी, फिर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन सुधार देखने को मिला था उनकी तबीयत में, लेकिन एक बार फिर से तबीयत खराब हुई और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पिछले 27 दिनों से मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर जी का इलाज चल रहा है, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि लता मंगेशकर जी की तबीयत रात में अचानक से ख़राब हो जाने के बाद फिर से उनकी जो तबीयत थी उसमें थोड़ी सी जो है कमी देखने को मिली है। फिलहाल डॉक्टरों की जो निगरानी है वो लता मंगेशकर जी के ऊपर बनी हुई है और जो जानकारी सामने आ रही है कि आईसीयू में अभी भी ये डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में है और पूरी तरह से डॉक्टर की निगरानी में। जो जानकारी सामने आ रही है कि कल दोपहर तक लता मंगेशकर जी जो है पूरी तरह से स्वस्थ थी। दोपहर तक वो खाना खाई थी, उठकर बैठी थी, लेकिन रात में जो है थोड़ी सी अचानक से तबीयत खराब हुई। उसके बाद जिस तरीके से फिर से जो फैंस है उनसे अपील की जा रही है कि लता मंगेशकर जी की जो तबीयत है वो ठीक हो, इसकी वजह से दुआ करें। बता दें कि जनवरी महीने में 8 तारीख को जो है लता मंगेशकर जी की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद मुंबई के इसी अस्पताल में उन्हें लाया गया था। तब से लेकर अब तक जो है उनका इलाज फिलहाल चला था। बीच में जो है कुछ दिनों के लिए लता मंगेशकर की तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि रात में उनकी तबीयत थोड़ी सी फिर से ख़राब हुई, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि आप जो फैंस है वो दुआ करें लता मंगेशकर जी जो है वो ठीक हो जाए। कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए कि लता मंगेशकर जी की जनवरी महीने में 8 तारीख को जब उनके घर में किसी एक व्यक्ति की कोरोना जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव पाई गई थी, जो फिर वो उनके संपर्क में आई थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया था। तो उसके बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उनके अंदर निमोनिया के भी सिम्टम जो है वो पाए गए थे। कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए कि लता मंगेशकर का फिलहाल पिछले 27 दिनों से इसी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब जिस तरीके से जो उनके चाहने वाले हैं, डॉक्टर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अब जो फैंस हैं उनके लिए दुआएं करें कि जितनी जल्दी हो सके लता मंगेशकर जो है ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाएं। कैमरा नवाज शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।